ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਿਆਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਫਸਲ, ਬੈਂਬੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ AK ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ, ਬੈਂਬੂ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੌਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਥਨੋਲ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, 10-12 ਪੇੜ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੋਵੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਫੁਟਾਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁਟਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਮਿਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਬੈਂਬੂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਚਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੈਂਬੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਦੇਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਪਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੌਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 12 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ 12 ਡੰਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 12 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਂਸ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ AK ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਮਿਸਟਰ AK ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੈਂਬੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਂਸ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬੈਂਬੂ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਬੂਸਾ ਬਾਲਕੋਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਭੀਮਾ ਬੈਂਬੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੋਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਬੂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਬੂ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 2024 ਚ ਕੋਈ भी पेड़ नहीं कटेगा कैचमेंट एरिया चो। तो इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है अपना बैम्बू को, क्योंकि बैम्बू हजारों चीज़ों में काम आता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने में ये प्लांट सक्षम है, पीपल और बरगद से भी ज़्यादा। तो ये वैसे भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। हर आदमी को मैं तो कहता हूँ घर में भी लगाना चाहिए, और खेतों की बाउंड्री में भी लगा दे तो भी आपकी इनकम 4 साल 5 साल बाद से लेकर 70-80 साल तक आती रहेगी, हर साल आती रहेगी। तो सर ये बताइएगा कि ये जो बैम्बू का जो टिश्यू कल्चर से लगता है, तो लगाने के बाद जब इसकी कटाई कितने टाइम में हो जाती है और कितने टाइम में ये पक करते हैं? इसको सर 4 से 5 साल में आप एक प्लांट से, जैसे आप देखोगे तो इधर आइए, आप दिखाता हूँ आपको। इसकी थिकनेस देखो सर आप, इस प्लांट इसकी, ये अभी 1 साल 8 महीने का ही बच्चा पौधा है। ये राइजोम्स बन के कितने 8 9 10 निकल गए ना, 8 9 10 निकल चुके हैं। अब ये अगले 2 सालों में ये कम से कम भी 16-18 हो जाएंगे, जिसमें कि 6 से 8 बैम्बू पूरे 40 फुट हाइट के हम काट सकेंगे। तो जो एक बैम्बू है उसकी कीमत कितनी की पड़ती है? एक बैम्बू सर 2.5 रुपए से लेकर और 4 रुपए 5 रुपए अकॉर्डिंग टू द मार्केट जो समय क्या होगी। अब फ्यूचर में नितिन गडकरी जी इथेनॉल ला रहे हैं, तो इथेनॉल में सबसे ज्यादा यूज ये होने वाला है, क्योंकि 24 में वर्ल्ड अपना उसके अंदर आपको इंडिया में 20% अपने पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिलेगा, जिससे कि हमारे को पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा। तो उसके कारण इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। नहीं, वैसे एक बैम्बू की आप जो माने तो कितनी 50-100 कितने आप 1 एकड़ में लगा के चलो तो आप कम से कम 1,80,000 रुपए आप कर सकते हो एक साल में, एक एकड़ से अर्न कर सकते हो, जिसमें कि इसमें कोई रे नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, सिर्फ आपको पानी देना है। 2 साल 3 साल को संभालना है पहले। उसके बाद तो ये इसकी पत्तियां जैसे अब गिरी हुई देखो आप, है ना, यही खरपतवार को उगने नहीं देंगी, यही नहीं उगने देंगी। ये इतना ढक देंगे, पूरा मल्चिंग कर देंगे इसको, और जमीन की जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो और बढ़ जाएगा। और
अगर आप किसी बीमार को भी ला के इसमें बिठाओगे, लोग वर्ल्ड के अंदर ऑक्सीजन पार्क खुल रहे हैं। वर्ल्ड ऑक्सीजन पार्क इसलिए खुल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन को खींचता है ये। तो जब ऑक्सीजन आपको मिलेगी तो आप इसके अंदर बिठा के लोगों से चार्ज भी कर रहे हैं वर्ल्ड में लोग कि आप इसके अंदर बेंचेस लगाओ, आप लंच करो, आप पूरा दिन यहाँ पर एंजॉय करो, पिकनिक करो और अच्छी एक ऑक्सीजन लेके जाओ, जिसे कहते हैं फ्रेश ऑक्सीजन से कहते हैं, जो बाजार में मिलती नहीं है, जो शहरों में मिलती नहीं है आज की डेट में पोल्यूशन के कारण। आपने जब इसकी कल्टीवेशन शुरू करी है तो ये कितना टाइम हो गया? सर ये जुलाई 2020 में मैंने लगाया था ये, और जुलाई 2020 आप लगा लीजिए, 2022 मार्च में खड़े हम। मई, जून और अप्रैल, मई और जून। हाँ जी, जो आप लगा लो जुलाई के अंदर, मतलब एंड जुलाई में मैंने लगाया था ये। तब थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, तो उस समय कोविड टाइम था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी, तो उसमें रिसर्च में निकल के आया कि इट इज़ द ओनली प्लांट कि एटॉमिक बॉम्ब के बाद भी हिरोशिमा नागासाकी पर यही एक प्लांट था जो कि वहाँ पर खेती में उग सका, अपना उगा। जैसे आपको दिखाऊंगा कि जैसे प्लांट मर गया, आप ये देखो बाकी प्लांट कितने बड़े हैं। हाँ, वो दिखाइएगा। और ये प्लांट देखिए मरने के बाद फिर दोबारा खड़ा हो गया। ये देखिए, कुछ नहीं किया इसको हमने, कोई स्प्रे नहीं करी है, कोई रे नहीं किया है, ये अपना फिर दोबारा फुटारा ले गया। नहीं, आमतौर पे जब कोई पौधा मर जाता है तो वो तो उगता ही नहीं है, तो ये क्यों उगा? ये अपना आप उगता क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है, ये भगवान की तरफ से देन है, ये चाकू वंश का है, जिससे ईख होती है उसी वंश का ही है। तो ये खत्म नहीं होता? नहीं, खत्म होता है ये 70 ईयर्स टू 100 ईयर्स तक लाइफ है। 100 ईयर्स में जाके कहीं इसका फ्लावर और इसका बीज बनता है, तो उसके बाद उसे बैटरी से टिश्यू कल्चर का इसको बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लगा सके, और इंडिया से ही ये गया है, बुद्धा के जमाने से ही वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है। तो सर 1 एकड़ के बीच में अगर कोई किसान लगाना चाहे तो कितने लगते? 1 एकड़ में सर जैसे मैंने 12 बाई 8 पे लगा रखा, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा 12 बाई 5 पे लगाएं, लाइन से लाइन 12 और पौधे से पौधे की दूरी 5, क्योंकि अपने आप में ही घेरा बना लेगा, तो जितना यील्ड अपनी इकट्ठी करनी है उतना बेटर है। अगर आप मेड़ पे लगाना चाहो तो मेड़ पे लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो आप इसको, और किसी भी तरह की जमीन में लगा सकते हो। मतलब कि पथरीली जमीन में आपको सिर्फ 2 साल से 3 साल की केयर करनी है, पानी देने की। आपको कोई फालतू की जैसे हम स्प्रे करते हैं किन्नू में या माल्टे में या किसी और चीज़ में, सारा दिन लगे रहते हैं कि अब ये बीमारी आ गई, अब वो बीमारी, इसमें कोई बीमारी नहीं है, बीमारी अपना भी ठीक होगी। सर आपने बात करी थी कि अभी बाउंड्री नहीं करनी पड़ती, तो इसकी मैंने सुना है कि इसकी बाउंड्री करो तो बहुत अच्छी हो जाती है बाउंड्री जो है। बाउंड्री अच्छा ना सर, आपने मान लो कोई किन्नू का बाग लगाया है, तो आप उसमें अगर इसको सराउंडिंग में लगाते हो 5 फुट बाय 5 फुट पे लगा दो, 5 पे, उसमें क्या होगा, आपको विंड जो है उसका वो रोक देगी, विंड ब्रेकर हो जाएगी, और आपको इनकम भी मिलने चालू हो जाएगी, और ऑक्सीजन प्लस, और ये बाकी बीमारियों को और रोकेगा। तो जब क्लियर कर देगा चीजों को, जब ये झुंड बन जाएगा, तो जो टकराना होगा मच्छर, जो भी कीट पतंगा जो भी है, पहले इसी से टकराएगा। तो सर इसको पशु वगैरह भी नहीं खाते? इसको कुछ नहीं खाता, कोई पशु नहीं खाता। ठीक है, तो इसका मतलब बाउंड्री जो है कि जो लोग किसान जो है जो तार लगाते हैं, आजकल करंट भी छोड़ते हैं, वो भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये बाउंड्री 5 फुट पे लगा दो, ये अपना भी इतना बड़ा घेरा बन जाएगा। जैसे आप ये देखिए, ये अलग कितना, आप देख ले 1 साल 8 महीने के अंदर ही 8 10 12 आ चुके हैं, तो ये जाके कम से कम 16 18 हो जाएगा। ये इतनी जगह घेर लेता है, ये मल्चिंग कर लेता है, मतलब ये मतलब प्रकृति के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो सर अगर कोई किसान लगाना चाहे तो क्या आप उसको क्या सलाह देंगे कि इस एरिया जो अबोर एरिया के बीच में आपने यहाँ पर ये खेती करी है, तो अबोर एरिया की जो जैसे सॉइल इसकी जो है वो क्या इसके लेवल है कि आप देख लो, मैं तो ये अबोर तहसील में ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का में ही हूँ, और बॉर्डर पे ही हूँ, गंगानगर, और मतलब हम लास्ट का ही ऑलमोस्ट गाँव है ये। तो यहाँ पर बढ़िया अपना आपके सामने है, लोग यहाँ पर हनुमानगढ़ से, गंगानगर से देखने आते हैं स्पेशली इस चीज़ को। नहीं, जैसे सॉइल इसकी जो है वो आमतौर पे किन्नू के लिए बढ़िया है वैसे तो। नहीं, इसको मैं बता रहा हूँ ना, पथरीली जमीन में भी हो रहा है मध्य प्रदेश में ये मतलब जो अनफर्टाइल लैंड है, जिसे हम कहते हैं कलर है या कुछ है, सब में हो जाएगा ये, सब में हो जाएगा ये। बस इसको एक तो बर्फ वाली जगह नहीं चाहिए, इंडिया में हर जगह हो सकता है एक्सेप्ट जहाँ बर्फ पड़ती हो वो, और जहाँ पर ज्यादा नमकीन पानी हो वो, मतलब जो नमकीन वाले जैसे समुद्र के किनारे, थोड़ा किनारे पे तो होता है, लेकिन उसकी अलग अलग वैरायटीज हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी हैं बैम्बू में। तो सर बैम्बू के बीच में कुछ बैम्बू ऐसे हैं जिनका अचार और मुरब्बा वगैरह बनता है, तो क्या इसका भी बनता है? इसका ये बनता है। किस पार्ट का बनता इसमें जैसे इसकी टिप्स वगैरह काट देते हैं, इसका बन जाता है, इसको काट के बनता है। हाँ,
क्योंकि मैंने बनाया नहीं है, लेकिन उसकी अभी रेसिपी पूरी पता नहीं है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं पाऊंगा उसमें। लेकिन इसका ये है कि ये बैम्बू आपको कुछ ना कुछ रुपए दे के जाएगा, क्योंकि देखिए आप कुल्फ़ी खाते हो, आप आइसक्रीम खाते हो, आप आजकल प्लेटें लेते हो, आप बहुत सी चीज़ों में इसका, ये जो आपकी अगरबत्ती स्टिक है, मतलब ये किस में यूज़ नहीं होता। आपने एक बात करी थी इथेनॉल ऑयल की, तो इथेनॉल क्या इसके बीच में? एथेनॉल निकलता है सर, पेपर से बनता है, पेपर मिल्स को जुड़ता है। फिर आपको बैम्बू, अब इसको दर्जा दे दीजिएगा स्टील का वर्ल्ड वाइड, जो ये स्पेशली ये भीमा बैम्बू है, इसके ब्रिजेस बन रहे हैं वर्ल्ड वाइड। आप ब्राज़ील वगैरह में इसके ब्रिजेस बन रहे हैं। इसका सबसे महंगा फैब्रिक बन रहा है लिनन के बाद, जो लिनसीड के बाद, जो हम फ्लैक्स सीड कहते हैं, उसका हम लिनन का कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद इसका बैम्बू का टॉवल बन रहे हैं, बैम्बू का कपड़ा आ रहा है। तो अभी वो टेक्नोलॉजी इंडिया में धीरे धीरे आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी राइट टाइम है, क्योंकि जितना अब अर्ली हम लगाएंगे अगले 4-5 साल में सब ये चीजें होने वाली हैं इंडिया में। तो आपके लिए उतनी कमाई का अच्छा साधन है। और मेरे ख्याल से ना ज़्यादा मेहनत करके जो दूर भी रहता है अपनी ज़मीन से, वो भी लगा दे। एक तो वो प्रकृति को वरदान दे रहा है कि मैंने वो लगाया, प्रकृति को कुछ अपना तरफ से एक एफर्ट मार के कह रहे हो कि भाई मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब कि रिगार्डिंग पोल्यूशन, और पोल्यूशन को हटाने के लिए आपने मतलब कुछ ना कुछ किया है, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी फील्ड है और किसानों को इसको लगाना। किसानों को बिल्कुल लगाना चाहिए जी इसको। मैं तो कह रहा हूँ हर किसान को कम से कम, अगर पूरे में ना लगा सके कोई किसान, छोटा है या बड़ा है, ज़्यादा महंगा पौधा नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप लेके मतलब कि बाउंड्री पे भी लगा दो, आपके खेतों को भी बेनिफिट, और आप मतलब इन्वायरमेंट को भी अच्छा स्वच्छ कर रहे हो अपने लिए। और इसमें आप कोई कैंसर की मतलब जैसी मतलब कि पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हो, ज़मीन को ख़राब नहीं कर रहे हो। ये मल्चिंग जो आप पीछे देख रहे हो, ये मल्चिंग धीरे धीरे करके इसका ऑर्गेनिक कार्बन इतना बढ़ा देगी ज़मीन का कि ज़मीन को और उपजाऊ बना देगी। सर, जो जगह जो खाली दिखाई दे रही है इसके बीच में, अभी जो इनिशियल स्टेज पे है बैम्बू जब, तो क्या इसके बीच में कोई और फसल लगाई जाए? देखो स्टार्टिंग में तो मैंने इसके अंदर चना भी किया है, और अभी मेरा नेक्स्ट ईयर प्लान है कि इसकी छाए के अंदर, जितनी गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है, हम इसके अंदर हल्दी एक ऐसी फसल है जिसको छाए चाहिए, वो बहुत अच्छी ले सकते हैं, और वो इसके नीचे हल्दी ही हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद AK सिंह जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हमारे यहाँ के किसानों के लिए भी ये जानकारी बहुत लाभदायक रहेगी। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस बैम्बू की खेती करना चाहते हैं तो ब्रेंज एग्रो के साथ में मिलकर आप खेती कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, और आपको ये पौधे यहीं पर प्रोवाइड हो जाएंगे, और इनकी खरीद फरोख्त का भी आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ब्रेंज एग्रो जो कंपनी है वो खरीद भी लेगी और आपको उसका लाभ भी मिलता जाएगा। और जब आप एक बार इसकी खेती कर देंगे तो वो लगातार 75 ईयर से लेकर 100 साल तक आप इसकी लगातार खेती करते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ में कि दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, ताकि किसान भाइयों को डाइवर्सिफिकेशन के तहत एक अलग से इनकम मिल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।